Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Hope everyone is doing well. Today we'll be doing chapter number 9, geometrical transformation. In the previous class, we talked about the application of geometrical transformation. We talked about what basically reflection is. And today we'll be doing rotation. Reflection हमने बात पढ़ी थी कि basically क्या होता है, अक्स होता है. कैसे रिफ्लेक्शन करेंगे? We have already done it. It is the reflection of a shape is drawn on a map using a line of mirror. Fine. जिस तरह शीशे में अपना अक्स देखते हो उस तरीके से आप क्या कहते हैं बिल्कुल लाइन ऑफ मिरर के थ्रू एक शेप का मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं. टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन. इतनी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है. हम सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे इसका मेन कॉन्सेप्ट बेसिकली ये क्या होता है, कैसे करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके हम एप्लीकेशन देखेंगे, इसको हम समझेंगे कि बेसिक से कैसे काम किया जाता है इसके साथ. लेकिन जो इसकी ड्राइंग है या इसकी प्लॉटिंग है वो हम ग्रेड 11 में करेंगे. ग्रेड 11 में आप लोग सीखेंगे किस तरह से इसको रोटेट करना है, कैसे काम होगा. लेकिन अभी ग्रेड 8 के लिए जो रिक्वायर्ड है बेसिकली आपकी नॉलेज रिक्वायर्ड है कि आपको ये बात पता हो कि रोटेशन बेसिकली क्या होती है. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग आवर वर्क. सो द फर्स्ट थिंग इज मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये बात समझाई थी कि रोटेशन बेसिकली क्या होती है. यूजिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट. दोबारा से हम वर्ड डॉक्यूमेंट में जाते हैं. लेट्स गो टू दी वर्ड डॉक्यूमेंट. Just wait for a minute till we get our Word document open. I have copied a picture and I'm going to paste it into your Word document. Like we have done in the earlier classes. What I'll do is that I will go to the picture tools and I will start rotating it. You will see an option of rotating. Okay, so now I have pasted the picture over here in the Word document. I'm going to use the picture tools up here and you will find the rotation option over here. Then I will rotate, as I told you guys, in degrees. I can rotate left, I can rotate right. These two options are for rotating. Let me make it a bit easier. Let me paste a picture. Wait a second. Small image which is visible for us to understand. Maybe you can go with this. If you see, there is some green option, a green pop button up here, and you can see this clockwise arrow coming out. This is basically your rotation. So when I click on it, I will be able to rotate the picture as so ever I want to. इसके थ्रू मैं रोटेट कर पाऊँ. I can rotate either to my right hand side or either I can rotate on my left hand side, but this is free hand rotation. इसमें कुछ डिग्रीज के मुताबिक नहीं होगा. It's all up to you the way you want to do it. Let's suppose if I just make it this way. लेकिन अब मुझे अगर रोटेशन करनी है, मुझे करनी है अकॉर्डिंग टू डिग्रीज. If I rotate right 90 degrees, it will be like this. अगर मैं इसको और रोटेट करूँ 90 डिग्रीज तो ये और ऐसे हो जाएगा. अगर मैं इसको और रोटेट करूँ 90 डिग्रीज, it will be this way. और लेट्स सपोज अब ये इमेज बेसिकली वापस को मैं टर्न करी इस तरीके से. Now your image is in this form. What if I want to rotate left 90 degrees? It will be this way. If I rotate again 90 degrees, it will be again this way. And then if I continue doing it, it would become this way. This is the way we rotate
our images. The same thing is happening on the graph also. So let's go to the graph which we were doing. Now figure 9.4 shows the flag A, B, C, D. So here whenever we are reading we have to follow what we're doing. So let us zoom in and get to our picture. So here it is. It's A, B, C, and D. They're telling us that shows the flag A, B, C, D rotated through 90-degree anti-clockwise about the origin. Now this one sentence has lot of things to say. First, we have to discuss what is clockwise and what is anti-clockwise. What is anti-clockwise? So let's learn about it. Anti-clockwise. Just shortcut of writing. Alright, so let's tell me one thing. How does our clock move? हमारी घड़ी किस तरह मूव करती है? हमारी घड़ी के जो पहले एरोज हैं वो किस तरह जाते हैं? वी नो कि हमारी घड़ी अगर 1 बज रहा होगा तो जब 2 बजेंगे तो हमारी घड़ी कब जाएगी, कैसे जाएगी? इट विल गो बेसिकली दिस वे, इट विल गो डाउन टुवर्ड्स द राइट. अगर कोई भी चीज मूव करती है घड़ी की तरह तो हम उसे बोलेंगे क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज मूव कर रही है. हमेशा याद रखना है कि जब भी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी तो वो राइट हैंड साइड से डाउनवर्ड जाएगी. अगर हम बात करें सी सॉ की, लेट्स सपोज इट्स माय सी सॉ, आप जो मूवमेंट्स पढ़ोगे साइंस में तो वहां पर भी आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करोगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. So you need to know what is this. Even when you're doing magnetism, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए. जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ोगे, जब मोटर्स पढ़ोगे तो वहाँ पर भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. So let's suppose आपका सीसो है. This is your seesaw. If the seesaw is moving down from the right hand side, this is my right hand side, and that's my left hand side. If the seesaw is moving down from the right hand side, we say that the seesaw is going through a clockwise movement. लेकिन अगर ये सेम सीसो अगर मूव करता है from the left hand side downwards, we say that it's an anti-clockwise movement. यानी कोई भी चीज अगर मूव करेगी downwards from the left hand side, it's actually your anti-clockwise movement. एंटी का मतलब होता है यानी वो मूवमेंट जो क्लॉकवाइज नहीं होगी. ये हमने पढ़ा था प्रीफिक्स से, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं. तो प्रीफिक्स दैट मीन्स कि जो चीज़ नहीं है. सो एंटी क्लॉकवाइज मतलब वो मूवमेंट जो कि क्लॉकवाइज नहीं है. तो क्लॉकवाइज का ऑपोजिट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा. इसमें क्या होगा कि आपकी मूवमेंट कैसे होने वाली है? यू विल गो डाउन फ्रॉम दी लेफ्ट. अगर मैं इसको और प्रॉपरली करके दिखाऊं तो स्पाइरल वे में तो ये कुछ ऐसे नजर आते हैं. क्लॉकवाइज इज समथिंग लाइक दिस एंड एंटी क्लॉकवाइज इज समथिंग लाइक दिस. So I hope it's very clear. Kindly make a note in your copies about anti-clockwise and clockwise directions. Very important concept. You can draw a seesaw to explain it as well. Now, the further thing they have told us about is जो और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने यहाँ पे कही है वो ये है. अच्छा, पहले हमने यहाँ पे बीच हमने वर्ड डॉक्यूमेंट देखी थी. हमने वहाँ पे 2 तरह के रोटेशन देखी है. एक फ्री हैंड रोटेशन देखी है और एक हमने देखी है डिग्रीज में रोटेशन. तो यहाँ अगर देखें सो फिगर 9.4 shows the flag A B C D rotated. एक फ्लैग है उसको रोटेट किया गया है
through 90 degree anti-clockwise about the origin. पहले हम बात करते हैं कि ओरिजिन का मतलब क्या होता है। ओरिजिन का मतलब होता है कि जहाँ से कोई शेप शुरू हो रही है, वो जगह जहाँ से कोई चीज़ शुरू होती है। अगर हम बात करें, लेट्स सपोज कि अगर आप कोई आइसक्रीम खा रहे हैं, तो वो आइसक्रीम कहाँ बनी है। अगर वो पाकिस्तान की बनी हुई आइसक्रीम है तो हम बोलेंगे कि इस आइसक्रीम का जो ओरिजिन है वो क्या है, पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप कोई शॉप पे गए और अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, लेट्स सपोज आपने मोबाइल खरीदा, अगर वो मोबाइल पे लिखा हुआ है मेड इन जर्मनी, तो उस मोबाइल का जो ओरिजिन है बेसिकली वो क्या है, जर्मनी होगा। यानी वो मोबाइल कहाँ से बना है या कहाँ का बना हुआ है, जर्मनी का बना है। इफ यू गोइंग टू बाय अ कार, a playing card, a remote control card, and that is made in China. So it means that the car origin is China. So I was giving the example to make the word origin clear to you guys. बेसिकली यहाँ पे origin का मतलब क्या है, origin वो point है जहाँ से कोई shape शुरू हो रही है। तो आप खुद मुझे देख के बताएं कि which place would be our origin here, which place can be the origin here. इफ वी सी बेसिकली कि ओरिजिन बेसिकली अगर हम इस ग्राफ में देखें तो हमें लग रहा है कि ओरिजिन बेसिकली ये पॉइंट है, यहाँ से हमारी पिक्चर शुरू हो रही है। लेकिन आगे जाके हमें क्लैरिफाई हो जाएगा बेसिकली ओरिजिन क्या होता है। So it would be better if you guys should open your books along with it. It's page number 243. Sorry, 241. Now reading further. The image of ABCD is A dash, B dash, C dash and D dash. कह रहे हैं कि जो रोटेट होकर ये इमेज बन रही है, देखिए हम बात करें कि ये हमारी रियल इमेज थी। Let me make it clear. This was our real image. This is our real image. Fine. This one. Fine. And this one is our रोटेटेड इमेज। हमने ये बात पढ़ी थी कि बेसिकली क्या हो रहा है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया। तो अगर हम बात करें 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करने की, तो अगर मैं इसको शो कर सकूं आपको, बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपका ओरिजिन है। तो क्या होगा बेसिकली ये 90 डिग्री ऐसे कुछ मूव हुआ होगा, इस तरीके से मूव हुआ। लेट मी ड्रॉ इट आउट फॉर यू गाइस। If this is my origin, so the picture will be rotating 90 degree towards your left hand side. Fine. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें अब बात समझाइए। They're telling us that the image of ABCD is A dash, B dash, C dash and D dash. तो हम अगर यहाँ पे गौर से देखें तो जो A जो पहले था इस शेप में, जो A था हमारा, वो रोटेट होने के बाद कहाँ आ गया, A dash। जो हमारा B था, जो हमारा वर्टेक्स B था, रोटेट होने के बाद कहाँ आ गया है, वो इस तरफ आ चुका है। दैट इज आवर B dash। C जो हमारा वर्टेक्स था, रोटेट होने के बाद कहाँ आ चुका है, इट्स ओवर हियर। एंड द वर्टेक्स D, which was here, after rotating it has appeared to be here. That is our D dash. So let's read further. So the next thing is that they're giving us the example of a kite. पहले उन्होंने समझाया था using a flag. Now they're giving us the example of a kite. The next example is the kite PQRS. So let's read what our kite is. So basically this is our shape. This is a real kite. The kite PQR and S. Kite PQR and S is rotated through 180 degree about P, that is 0, 2. अच्छा, इस जुड़ने में बहुत सारी बातें छुपी हुई है, we'll go one by one. So the kite
No, we have read it out. That is PQRS is rotated, मतलब उसको टर्न किया गया. रोटेशन का बेसिक मतलब क्या है? टर्निंग. So our kite is turned through how many degrees? Basically 180 डिग्री. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये 180 डिग्री का मतलब क्या है? What do you mean by this 180 degree? This actually means 90 degree plus 90 डिग्री. पहले हमने 90 डिग्री टर्न किया और फिर हमने दोबारा से 90 डिग्री टर्न किया, तो हमारे पास कितने डिग्री का टर्न हो जाएगा? 180 डिग्री का टर्न हो जाएगा. हमेशा इस तरीके से याद रखें. फाइन. अबाउट द पॉइंट P दैट इज 0,2. किस पॉइंट के थ्रू टर्न किया? बेसिकली वो पॉइंट P है. अच्छा, एक यहाँ पे एग्जांपल मैं दूंगी आपको कंपास का. जब भी आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो आप अपने कंपास को एक जगह पे फिक्स करते हैं, फिर टर्न करते हैं. फिर आप जब टर्न करते हैं तो उसके थ्रू आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. तो बेसिकली वो पॉइंट आपका सेम होता है. मुझे याद है कि जब हम रोटेशन करते हैं, व्हेन एवर वी आर रोटेटिंग, हमारा एक पॉइंट फिक्स रहता है. एक पॉइंट को फिक्स करके हम पूरी इमेज को रोटेट कर रहे होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ये बात याद रखिए, एज यू डू फॉर अ सर्कल, यू कीप द सेंटर ऑफ द सर्कल द सेम एंड देन यू मेक अ सर्कल. सर्कल और कुछ नहीं है, वो टर्न है. सर्कुलर टर्न है. फाइन. अब यहाँ पे जब हम किसी पिक्चर को रोटेट करेंगे तो क्या होगा? हम एक पॉइंट फिक्स रखेंगे और बाकी तमाम पॉइंट्स को हम लोग वेरी करेंगे. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज कि ये हमारी एक पॉइंट है. मैंने क्या किया, अब मुझे ये नहीं पता कि एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है या क्लॉकवाइज मूव किया. आई डोंट नो व्हाट वी हैव डन. याद है कि ये मेरी ओरिजिनल काइट है. अब मुझे कुछ सोच के बताएं कि बेसिकली इसको किस तरीके से मूव किया होगा कि हमारे पास रिजल्टिंग पिक्चर P डैश S डैश R डैश Q डैश, हम इस पिक्चर को किस तरीके से, इस पिक्चर को हम किस तरीके से रोटेट करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे कि हमारे पास ये पिक्चर बन जाए? तो आप खुद सोच के बताएं. पॉज करें वीडियो को और फिर सोच के बताएं. खुद सोचे, पे दिमाग में सोच के रखें. सो आई होप एवरीबॉडी विल हैव एन आइडिया. जाहिर सी बात है, अगर मैं इसको, इस पॉइंट को अगर फिक्स रखूं, तो अगर मैं इसको 90 डिग्री घुमा के देखूं और फिर 90 डिग्री मजीद घुमाऊं इसको, तो मेरे पास इस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के थ्रू ही ये पिक्चर बन सकती है. लेकिन अगर मैं इसको उल्टा घुमाऊं और फिर अगर मैं इसको उल्टा घुमाऊं, तो क्या मेरे पास वो पिक्चर बन रही है? सोच के बताना. लेट्स सपोज अब मैंने इस पिक्चर को पहले 90 डिग्री घुमाया. अब मेरे पास जो पिक्चर होगी वो कुछ ये होगी. ये मेरा काइट है. सो लेट्स सपोज ये मेरा पॉइंट P है और ये मेरा पॉइंट R है. ये Q है, सॉरी ये PS हुआ है, मेरी मिस्टेक है. सो दैट्स PS R और ये Q हो जाए. जब मैं इसको और मजीद घुमाऊंगी इस तरीके से 90 डिग्री और घुमाऊंगी, तो क्या हो जाएगा? मेरी पिक्चर कुछ ऐसी आएगी. Again, that's the P. This is the S. This is the R. And this is my Q. तो यहाँ देखिए वाक्य मेरा वर्टेक्स मैच कर रहा है. ये बिल्कुल P आ रहा है, ये भी बिल्कुल S आ रहा है, ये बिल्कुल R आ रहा है हमारे पास, और ये बिल्कुल Q आ रहा है. लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स वे में, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ ना करती, अगर मैं इसको मूव करती क्लॉकवाइज,
Let me move it clockwise. So what will happen? Now, if I'm moving it down clockwise, this is my original image. When I move it down 90 degree, we will get an image something like this. This is my P, this is my Q, this is my R, this is my S. This was when I moved 90 degrees, anti-clockwise. When I move it further 90 degrees, what will happen? I will get an image something like this. Now, this is my P, this is my Q, this is my R, and this is my S. However I move, I'm going to get the same resultant shape. अब मुझे कैसे पता कि हमने किस तरीके से मूव किया? हमने इसको पहले मूव किया था क्लॉकवाइज, फिर हमने इसको मूव किया एंटी क्लॉकवाइज, बट after doing both of the directions, we have seen that we're going to get the same shape. So how will I know कि हमने इसको किस डायरेक्शन में मूव किया है? So let's continue. अब यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे कुछ रूल्स जो कि रोटेशन के हवाले से हैं. हमने पहले क्या देखा? पहले हमने एक इमेज देखी. हमने पहले इसमें देखा कि रोटेशन बेसिकली क्या होती है. फिर हमने एक काइट की पिक्चर देखी, उसमें बताया गया था कि उसको रोटेट किया गया है 180 डिग्री. हमने पहले समझा कि बेसिकली 180 डिग्री का मतलब क्या. फिर हमने क्या किया, हमें कहा गया कि उसको हमें बताया नहीं गया था कि उसको किस तरह से रोटेट किया गया. So we rotated anti-clockwise also, and we did the same for the clockwise direction also. But after doing in the both direction, we realized that कि ये तो दोनों तरीके से रोटेट हो रही है और हमारे पास आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं. चाहे उसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करें या चाहे हम इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करें. तो यहाँ पे बेसिकली कुछ रूल्स हैं which specifically talk about rotation. It's on a page number 242. Page number 242. I want everybody to open this. Underlining यहाँ पे होगी. Page number 242. So let's start doing it. So from the figure 9.4 and 9.5, we observe the following. पहली बात जो हमने ऑब्जर्व की वो ये थी कि रोटेशन कैन आइदर बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. रोटेशन किसी भी तरीके से हो सकती है. ज़रूरी नहीं है कि वो क्लॉकवाइज ही हो और ज़रूरी ये नहीं है कि वो एंटी क्लॉकवाइज ही हो. सो इट कैन बी रोटेटेड एनीवे. A 90-degree rotation represents an anti-clockwise rotation. अब जो आपकी बात फोकस करनी है वो ये है, अगर पॉजिटिव 90 डिग्री है, इस बात का मतलब है कि उसको किस डायरेक्शन में मूव किया गया है. इट इज रोटेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन. याद रखें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है मतलब पॉजिटिव, एंड माइनस 90 डिग्री रोटेशन रिप्रेजेंट्स अ क्लॉकवाइज रोटेशन. अगर माइनस 90 है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया गया है या टर्न किया गया है, और अगर प्लस 90 है तो वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव किया गया है. द लास्ट सेंटेंस हियर इज, इससे पहले मैं जुमला पढ़ूं पहले हम डिस्कस करते हैं ये चीज. लेट्स सपोज हमारा एक सर्कल है, इसको हम प्रॉपर्ली ड्रॉ कर देते हैं. लेट्स सपोज वी हैव अ सर्कल, right? It's a bigger circle, and I'm going to draw some lines in between. The first line, here is the first line, the horizontal line. Let's suppose
मुझे पता है कि इस सर्कल में जो एंगल इस लाइन के दरमियान बन रहा है वो बेसिकली क्या होने वाला है, इट विल बी 90 degree angle. The angle forming in between this line and this line will also be again a 90-degree angle. Furthermore, the angle forming between this line and this line up is again a 90-degree angle. And the angle forming in between this line and this line is again a 90-degree angle, right? So if I add it down, this is also 90 degree, it's 90 degree, again it's 90 degree, it's 90 degree, again it's 90. So if I redraw it again, alright, so let me do it here. Let me do this part first. अगर हम बात करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर कोई चीज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो बेसिकली वो कैसे मूव करेगी? अगर कोई भी चीज़ क्लॉकवाइज मूव करेगी तो वो कैसे मूव करेगी? हमने बात पढ़ी थी कि वो मूव करेगी डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स दी राइट. ये हमारी राइट हैंड साइड है तो ये मूव कर रहा है डाउनवर्ड्स राइट हैंड साइड. तो बेसिकली इसकी मूवमेंट कुछ ये होने वाली है. अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसे मूव करेगा. अगर हम इसको दोबारा से ड्रॉ करें, movement clockwise will be something like this. अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कुछ ऐसे होगी, मतलब कुछ डाउनवर्ड्स मूव करेगा. Again, if I want to show it again, look at again as many times as you can. Clockwise movement will be always downwards. अगर कोई चीज़ डाउनवर्ड्स मूव करे तो मतलब वो क्या करेगी? सर्कुलर पाथ एक्वायर करेगी. याद रखिएगा कि ये नहीं है कि बिल्कुल डाउन होगी लेकिन सर्कुलर नहीं होगी. क्लॉकवाइज का मतलब ही सर्कुलर पाथ को बोलते हैं. फाइन, that was our clockwise movement. But if something is moving in an anti-clockwise direction, it is going to go downwards from the left hand side, that is this way, and then it will continue its path round in a circle. Again, once again, look at it carefully. I'm going to do it in an anti-clockwise direction. You're going to move downwards from the left hand side and will acquire a circular path. So we're moving down from our left hand side. I hope it's very clear. Now, if you move further, अगर हम बात करें कि अगर मुझे मूव करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब अगर मुझे जाना है राइट हैंड साइड से, पहले लेबल कर दिया हमारी राइट हैंड साइड है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड. If I want to move down from into an clockwise direction, so first of all I know I'll be moving down from the right. Fine. अगर मुझे रोटेट करना है डाउनवर्ड्स 90 डिग्री, तो लेट्स सपोज अगर मेरा पॉइंट ये और अगर मेरी कोई शेप ऐसी बनेगी, अगर ये कोई लाइन मैंने खड़ी की तो मैं कैसे मूव करने वाली हूँ? लेट्स सपोज एक हमने डंडी खड़ी की हुई है, एक रोड हमने खड़ी की हुई है, बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री का उसका एंगल.
अगर मुझे इसको रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज में, तो ये कैसे मूव होगा? ये कुछ इस तरीके से मूव होगा. इट विल गो डाउन कवरिंग 90 डिग्री. और हमें पता है कि अब रोटेट होने के बाद ये कैसे आएगा. हाउ विल वी एबल टू सी दिस इमेज नाउ? वी विल सी आवर रॉड दिस वे लाइन. पहले हमारी रोड खड़ी हुई थी, लेकिन जब मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब ये बिल्कुल लेटी हुई. If you can see, it is this way. If I rotate it further 90 degrees, अगर मैंने कहा नहीं भाई मुझे इस रोड को रोटेट करना है, again I'm showing it to you guys again. पहले हमारी रोड इस तरीके से खड़ी हुई थी परपेंडिकुलर. हमने कहा कि हम इस रोड को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री. अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो जो पॉइंट मैंने यहाँ पे सेम रखा है, यहाँ पे इस लाइन पे तमाम के तमाम पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, तमाम के तमाम पॉइंट्स मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है जो मूव नहीं हुआ, वो है ये वाला. ये वहीं पे था. जब मैंने इसको रोटेट किया, when I rotated it 90 degrees, what we got to see is, we got to see and our road lying this way. Sorry for that thing. Let me do it properly. So we can see our road lying this way. अगर देखा जाए तो मेरा वो सेंटर पॉइंट तो वही है, वो चेंज नहीं हुआ. ये थी हमारी क्लॉकवाइज मूवमेंट 90 डिग्री. लेकिन लेट्स सपोज कि अगर हमें कहा जाए कि नहीं हमें 90 डिग्री मूव नहीं करना है, हमें मूव करना है 180 डिग्री. तो इस 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? मैंने अगर कोई बात समझाई थी. इट मीन्स एक्चुअली 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री. So first, what I'll do is that first I will rotate it completely 90 degree. पहले मैं इसको रोटेट करूंगी 90 डिग्री. तो मैंने जब इसको रोटेट किया 90 डिग्री, आई गॉट दिस. फिर मैं इसको रोटेट करूंगी 90 डिग्री. फिर अब मेरे पास क्या आएगा? दिस. अब जो मेरे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या होने वाला है? बेसिकली ये. This will be my final answer. So after rotating a rod from here to 180 degree, I'm going to get my rod this. This was moving a rod clockwise. What if we're going to move it anti-clockwise? What if we are doing anti-clockwise? Basically anti-clockwise क्या होता है? Anti-clockwise के लिए मैं कलर चूज करूंगी blue. So let's suppose, let me change the color. Let me take purple for this purpose. Purple color choose करेंगे. We know that whenever we are doing, whenever we are doing clockwise, anti-clockwise direction or movement, we know that we will be moving down from the left hand side. That is moving this way down. Fine. So let's suppose if we have a road standing in the center like this, and if we have to move it anti-clockwise 90 degrees, then how will I move is that I will go turn 90 degrees and my road will be standing like, or my road will be lying down this way. If we observe this carefully, we can see that all the points are being rotated. इस रोड की तमाम पूरा पार्ट जो है रोटेट हो चुका है, लेकिन सिर्फ उसका एक ही पॉइंट है जो बिल्कुल वहीं पर ही है.
दैट इज द मिड पॉइंट. इसको हम बोलेंगे द पॉइंट ऑफ रोटेशन. आगे जब हम पढ़ेंगे हम ये देखेंगे इट्स एक्चुअली द पॉइंट ऑफ rotation or the center of rotation. That is moving a rod anti-clockwise in a 90-degree angle. Secondly, if I'm going to move this, if I say no, I want to move this rod 180 degree, it actually means कि इसका मतलब क्या, पहले हम इसको रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री और फिर दोबारा से इसको मैं रोटेट कर दूंगी एंटी क्लॉकवाइज 90 degree. This is my first 90 degree, and if I move further this way, it's the second 90 degree. This is the second 90 degree rotation.